Oh my God, that's a full house. At Netflix, we love that every day to have a full house. Thank you so much for coming here today. Hello, namaste, warm welcome to each and every one of you. I'm Monica Shergill, and I'm here to represent the entire creative force of Netflix India. We are all in service of entertainment for you. So I hope you like what we present today. It's an honor for us to have you here. All of us at Netflix feel very grateful that we get to read amazing stories every day, meet fantastic creators, and work with the most talented artists in the country. हमेशा से हमारा goal रहा है to tell best-in-class stories from across the country. And we make these available to our audiences around the world. 260 million global households now and counting. Please, can I have a round of applause here? थैंक यू अगर आप हर घर में सिर्फ 2 लोग भी कंजर्वेटिवली काउंट करें so that totals up to more than 500 million people on Netflix around the world. So please scratch millions, we are talking billions here. Every story that we make, every creative voice that we get reaches to billions of people out there. So I'm really proud and humbled about it. I think it's pure joy, and it's pure joy to be sitting with all of you here and to be sharing हमने जो पिछले साल किया था उससे हम कितना बेहतर आगे जा रहे हैं this year. But before I give you a sneak peek into what is sizzling on Netflix this year, I just want to take a moment to reflect on 2023 and what a phenomenal year it was for us. From winning the Oscar, the International Emmy Awards at Busan, and 100+ awards in India, at home, amongst our audiences who gave us so much love. I think we received audience and critics love alike. A big thank you to all the path-breaking storytellers and talented artists on and off camera and our audiences who made it possible. Thank you for watching, and thank you always for inspiring us to be better. India's taste in entertainment is so diverse that even within one household, one family, there are so many people with different tastes, different moods. Everybody watches radically different stuff, and yet हम सब लोग इकट्ठे आकर, we watch certain movies and series and documentaries together. For example, my daughter loves watching young content. I sit with her and enjoy Mismatched. I watch Hunt for Veerappan with my husband. So many other things that I watch together with them as family. I'm sure it's the same for all of you with your families. And it's not an easy feat to be something to everyone. But I'm glad to say that year after year, we are able to make it happen. Aap hain, to hum hai, and it really makes us happy. At Netflix, we are all about co-creating to bring your vision to life. So thank you, truly, and thank you to the members of the press, all of you here, because you really keep us on our toes, always. So there are blockbuster films this year, there are epic series, returning loved IPs and characters, Oscar-nominated documentary, India's leading comics coming to Netflix, and unparalleled talent that we are gushing over, and we are supremely excited to present to Indian homes and screens and straight into your hearts. So without further ado, I'm pleased to hand over to our Master of Ceremonies, Zakir. I'm sure he'll do a way better job of presenting than I can ever do. So here's to entertainment ka next level on Netflix and from Netflix 2024. Thank you. थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब, अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म हुई। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ठीक ठाक नाश्ता किया होगा, क्योंकि अब जो अनाउंसमेंट है वो ऐसा है कि शुरू में ही इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा ना कि आप लोगों को लगेगा कि भाई इस बार तो इन्होंने फोड़ दिया। इश्क, इब्तिदार, इतिहास के पन्नों में खोई हुई एक ऐसी नायाब कहानी जिसे फर्स्ट एवर स्ट्रीमिंग प्रीमियर, his first ever streaming premiere and his grandest project yet, an epic saga of power, love, freedom. Here is Hira Mandi, the Diamond Bazaar.
कि इसको और बड़ा बड़ा करते हैं। तो आप जब जो सीईओ हैं प्रोडक्शन हाउस की उनकी, तो कैसे आप उससे डील करती हैं? हाउ डू यू मैनेज थिंग्स? थैंक यू जाकिर फॉर द इंट्रोडक्शन। सर बोल के निकल नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं। अच्छा। और ट्रू मायने में ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। अच्छा। बट येस, दिस जर्नी हैज़ बिन जॉयस बिकॉज Netflix is a partner, and of course with this beautiful women around. So we have a great show in hand, and we are waiting to share it with the world. माशाल्लाह, क्या बात है। सोनाक्षी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप सब लोग आपके सब आप साथ में एक साथ काम कर रहे हैं, है ना? खासकर मनीषा जी आपके साथ हैं, ठीक है? तो हम सबका सपना जीकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, क्लीशे आंसर तो वही होगा, मुझे बहुत पसंद आया उनके साथ काम करके, यू नो शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन, बट दैट्स एक्चुअली ऑल ट्रू। द बॉडी ऑफ वर्क दैट शी हैज़ बिहाइंड हर, जितना काम इन्होंने किया है, एंड द फिल्म्स दैट वी हैव सीन of hers, she is so respected, she's so stunning, she's so beautiful, she's so elegant, just wow. But more than that, I think that keeping that aside, when I worked with her, I realized what a beautiful person she is. I think उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. I think just the way she conducts herself on set, just watching you and being in the same frame with you, ma'am, was such a pleasure. And I hope that I can do it again real soon. All of us, actually. I think I speak for everyone. It was an honor working with Manisha ji. माशाल्लाह। मनीषा जी, हाँ जी। जी आप भंसाली साहब के साथ आप शुरू से खामोशी से लेकर हीरा मंडी तक का जो सफ़र है, एज एन आर्टिस्ट यू बोथ हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंसेस इन दीज ईयर्स। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? व्हाट वाज द डिफरेंस देन एंड नाउ, इफ यू कैन जस्ट शेयर? First of all, good afternoon, everybody. I just want to give a tight hug to Sona. Thank you for this. Thank you. We all have really worked hard and tried to do our best because we were working with the maestro. And so, Aditi, all of us have tried to do our best. And yeah, I mean, to be working with Sanjay after 25 years, after his first film, Khamoshi, and now Hira Mandi, I mean, it can't get better than that. And it's been a humongous journey. I've seen him grow as an artist, as an maestro, as a genius. He clearly is India's best today that we have. You know, he comes amongst the greatest filmmakers in India. And we are lucky to be working with him. We are lucky to be sweating and working hard and trying to perfect our act. And, you know, the joy of the outcome is all there. And we're dying to show it to everybody and get you all feedback. Thank you. माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू आस्क संजीदा और शारमिन, आप लोगों का तो डेब्यू है OTT पे ही, ठीक है? आप लोगों को कैसा लग रहा है? इतना ग्रैंड ऑपस, इतना सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे? आई पास ऑन द माइक इफ यू कैन डू। आप भी खसका दो आगे। हाँ, अच्छा है, ठीक है। OTT पे डेब्यू एक चीज़ है, बट एज एन आर्टिस्ट टू बी प्रिविलेज टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक संजय सर, इट्स जस्ट वेदर इट्स ऑन OTT और इट्स इन अ थिएटर, दैट इज़ नॉट द लाइक बाइफिकेशन। ऑल्दो नहीं, हमारा इवेंट भी चल रहा है इसलिए भी नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, तो अगला On the other hand, watching Sanjay sir adapt to a format like doing a series, that is a whole different ball game as an actor. It's not just one movie. 8 movie एक time पे चल रही है. It's 8 episodes. So at the end of the day, I was assisted sir on Bajirao Mastani on a movie, and watching him adapt to the format of a series, it was a privilege to be a part of it and to be able to execute his vision. माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर। अस्सलाम। हेलो एवरीवन। मैं यही बोलना चाहूँगी ज़ाकिर कि ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। क्या? मैंने ख्वाब देखा था और आज वो हकीकत हो गई है। आई एम श्योर इस शहर में जो भी आता है वो एक बार संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहता है। और आज मैं इस मंच पर हूँ एज वन ऑफ हिज लीडिंग लेडीज़। आई थिंक इट्स अ बिग डील फॉर मी। So I'm just honored to be a part of Hira Mandi,
ये मंच बहुत स्पेशल है, ये लोग सब लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और आई एम श्योर हीरा मंडी हम सबकी जान है। थैंक यू वेरी मच संजीदा। अदिति और ऋचा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा साहब कि आप लोगों ने तो पिछली फिल्म दोनों का एक एक एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है उनके साथ काम करने का, पर ये कि इतने उनके कपड़े हैवी होते हैं नहीं। इतना अच्छा नहीं क्या? बिल्कुल हाँ। नहीं। तो और ये मतलब ये तो हीरा मंडी जैसे शो में तो रोज़ दुल्हन बनने का काम है। तो आप ज़रा बताइए हमको कि कैसा आपका अनुभव रहा है फिर। Should I go first? यस प्लीज। So, let me start with the more important thing, which is, I think working with Sanjay sir is life-altering. It's a huge blessing. I mean, I can't even describe to you what it is being around him. And you know what she said, कि हम जब film shoot करते हैं, you get a certain amount of time with a director. When you shoot a show, you get that much more time. And it's really like some kind of बिल्कुल सर हाथ पे। एंड आई वुड से कि सब देखते हैं ब्यूटी, कपड़े, इयरिंग्स, ट्रस्ट मी दर्द भी होती है, बट what really moves me and what I find incredible about the experience is जो सर का the fact that it's his soul goes into everything that he does. He lives, breathes, eats his characters literally, and there is so much passion. And what I see is, and what I'm so grateful for is that in the pushing, in the challenges that he throws at you, there is so much love and pride, you know, and that thing of just, you know, holding you and pushing you to do your best. And I think I am very grateful for that experience, and I hope I get it multiple times. I love him. क्या बात है रिचा, if you can wind this up. सो इन्होंने जो कहा है उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी दैट बहुत सुंदर, खूबसूरत, शानदार कॉस्ट्यूम्स तो कोई भी दे सकता है आपको, बट विद द विजन ऑफ एन एस्थीट, द थिंग दैट इज़ पॉसिबल विद हिम इज़, आई डोंट नो कि उनके अलावा कोई ऐसा है अभी इंडस्ट्री में जो आपको 30 किलो के कॉस्ट्यूम में 8 चक्कर करवा के ज़मीन पे बिठा के लेफ्ट आंख से एक आंसू गिरवा दे क्लोजअप शॉट की टाइमिंग के लिए, वैसा कोई और नहीं है। क्या बात। सो आई रियली थिंक अक्सर ये होता है एक्टर तरस जाता है टू ग्रो, with him it's possible because he will push you and push you and push you, and that day we met Rani Mukherjee, she said something very accurate, till you work with Sanjay Leela Bhansali you don't know your own potential. क्या बात, वाह क्या बात है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक यू टू कम सेंटर स्टेज, आप लोग सब आ जाइए, एक फोटो हो जाए बढ़िया सी। और इनका साथ देने आ रही हैं साहब राइटर प्रोड्यूसर, वो भी उनकी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, वो भी डेब्यू कर रही हैं, एंड शी इज लिविंग द राइटर्स ड्रीम। प्लीज वेलकम द प्रोड्यूसर, द राइटर ऑफ द्रौपदी, कनिका ढिल्लन। कृति नेशनल अवार्ड भी हो गया इस बार, ठीक है, इतनी सारी जो है फिल्में भी सब हिट हो रही हैं, बॉक्स ऑफिस भी जो है अपना धड़ाधड़ चलता रहता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों लगा कि प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए? ये अभी नहीं लगा एक्चुअली, ये इन सब चीज़ों और नेशनल अवार्ड के पहले लगा था। आई थिंक हर एक्टर के लाइफ में या हर इंसान के लाइफ में एक टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि यार अभी ये तो अच्छा है बट और क्या, व्हाट नेक्स्ट, you know. And for me, I feel creatively inclined, I always have, and I always wanted to be a part of films, tell stories, you know, in ways other than just being an actor on set. और मुझे एक ऐसी फिल्म के लिए करना था जहाँ मैं बहुत मैडली पैशनेट हूँ उस कहानी को लेकर, और द्रौपदी वो ऐसी कहानी थी जो जर्म से लेकर, आइडिया से लेकर, आई वॉज विद कनिका, यू नो, थ्रू द फिल्म। ऑल्सो आई थिंक मिमी के बाद कहीं ना एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो फीलिंग
that I wanted to find something जहाँ layered हो, intense हो. As an actor, I feel satisfied. और अपने आप को push कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँ जो पहले कभी नहीं किया है. और बहुत टाइम से ऐसी opportunity मिल नहीं रही थी. And I feel and I believe that sometimes when you can't find an opportunity that really excites you, you gotta create one. So I feel like Dopatti was that opportunity, even as an actor, that I felt that I wanted to create. And I want to thank Kanika for creating it with me and for giving me my most challenging role, even as an actor. And this journey has been beautiful because जैसे आप बच्चे को देखते हो ना पैदा होते हुए फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसके अलग अलग रूप उसी तरह से ये मेरी छोटी सी बटरफ्लाई जो है उसकी पहली कथा है आई वुड से एंड जर्म से लेकर आइडिया से लेकर उसे स्क्रिप्ट बनते हुए देखना फिर उसे अलग अलग ड्राफ्ट से गुजरते हुए देखना उसका म्यूज़िक उसका लुक वो किस तरह से पर्दे पर आती है वो सारी उस प्रोसेस का पार्ट होना आई थिंक वाज क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइंग एंड आई होप कि मैं इसके बाद और ऐसी कई कहानियाँ सुना पाऊँ. माशाल्लाह क्या बात है सब. कनिका आपसे मैंने जब कहा था कि यू आर लिविंग अ राइटर्स ड्रीम तो ये एक हर राइटर का ख्वाब होता है कि साहब उसकी कहानी पे उसको सबसे ज़्यादा हक मिले. ठीक है, एवरीबडी लव्स यू, यू आर लाइक रेमंड. ठीक है, पीपल ईट आउट ऑफ योर हैंड्स. तो क्यों आपको लगा कि ये वो सही स्क्रिप्ट है, कहानी है जिसमें आपको भी एज ए प्रोड्यूसर आना चाहिए? वो क्या मौका था और वो क्या सही तरीका है जिससे इंसान राइटर से प्रोड्यूसर बनता है? पता चल जाए तो हम भी ट्राई करें सब. Well, as a writer, stories really matter to me. Storytelling really matters to me. And, I'm very fortunate that I have an audience as a writer. But, the best gift that a teller and an audience can have is a well-told story. And प्रोड्यूसर बन के ही मैं वो कमिटमेंट पूरी कर सकती थी. मुझे ऐसा लगता है अपनी कहानी की प्रोड्यूसर बन के आई कैन फुलफिल दैट कमिटमेंट दैट माई स्टोरी कैन बी वेल टोल्ड एंड द विजन विल बी what it needs to be. So, and Dopatti is that story which is very close to my heart. Kriti has been with me on that journey. It'll surprise you, it'll shock you, it'll enthrall you, it'll make you think. So, I'm very fortunate that I got to turn producer with this particular story. And also, I have a platform partner, Netflix, with a global audience, a global reach, their commitment to storytellers and creators. So, I couldn't have found a better team to turn a debut producer and launch Katha. Now, coming to my most favorite producing partner, Kriti, yes. As she most beautifully put it, ki, छोटी सी बटरफ्लाई की पहली कथा. She is an incredibly talented actor and I'm so proud to say that when I saw the rushes and the performance, I think this is her best work till date, and it's just the beginning because she's incredibly insanely talented and I'm so proud that we got to work together. Of course, casting Kajol ma'am as a writer and a producer is a dream come true. She's a legendary actor, and seeing the screen light up with Kriti versus Kajol is any writer's and producer's dream. And above all, the captain of my ship, I would like to thank my director, Bob, a very sought after film director. He's not here with us, but he's very excited about this. And all in all, I'm very happy that I got a dream team to debut as a producer and launch my company, Katha Pictures. क्या बात है. ये मुझे जॉनर का थोड़ा सा समझा दीजिए कि आपको क्यों लगा कि ये वाली फिल्म से अपन शुरू करेंगे. What is so attractive about it? Like, I also want to understand this exactly. कि ये थ्रिलर का क्या है ये थ्रिल? आप बहुत सारी लिखती हैं, ठीक है. मुझे थ्रिल में मज़ा आता है, बोरियत से डर लगता है. अच्छा. और इनके कोई कैरेक्टर सीधे नहीं होते हैं. हाँ. सो ये भी है कि कुछ ना कुछ लेयर्स रहते हैं, थोड़े ग्रे रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग एज एन एक्टर. एंड आई थिंक हम सब ग्रे हैं यार, कहीं ना कहीं. ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ही कम लोग होते हैं. बट फॉर मी थ्रिलर, it's a genre that is very difficult to write, even more difficult to
direct because you have to keep the audience engaged throughout. You have to keep them guessing. And मैंने कभी इससे पहले thriller नहीं की, मेरी पहली thriller है. I would not call this a thriller. I would say it is an emotional drama thriller because there is a lot of emotion in it. There is a lot of drama in it. Thrill एक aspect है. Teaser thrilling है, but फिल्म के अंदर बहुत इमोशन है. फॉर मी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार अच्छा इस जॉनर से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक जो आइडिया है, जो फिल्म कह रही है, जो बात कहने की कोशिश कर रही है फिल्म, जो फिल्म देख के ही पता चलेगा, बट वो बात जो थी वो दिल के बहुत करीब थी. और दैट आई शेयर्ड विद कनिका. इनके पास एक आइडिया था, इन्होंने दो आइडियाज़ को ऐसे मैरी कर दिया बहुत ही ब्यूटिफुली. और आई थिंक वो बात कहने का मन था, उससे थ्रिलिंग जॉनर बन गया, वो अलग बात है ना. मल्टीपल लेवल्स पे दो पत्ती है ये. जी ठीक है, जी है ना? जी. वाह. तो इसमें एक काजोल भी हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, पर उन्होंने मेरे ख्याल से एक संदेशा भेजा है, तो आइए वो देख लेते हैं. कैन यू प्लीज प्ले? All of us, Bob, me, Kanika, Kriti, we all had such a good time together, and I think you're going to enjoy the teaser. The producer, the all prime suspect of this case, Netflix के हमारे पर्सनल डार्लिंग विजय वर्मा, संजय कपूर, टिस्का चोपड़ा और सोहेल नैयर. दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, विजय और मैं दोस्त हैं, पर पिछले 1 साल से हम लोगों ने मिलना बंद कर दिया है, क्योंकि इतने बार नेटफ्लिक्स के प्रमोशन में हम लोग मिल लेते हैं कि बाद में मिलने का मन ही नहीं करता है. ठीक है, मन तो बहुत करता है, लेकिन ये नेटफ्लिक्स वाले ना इतना काम पे लगा के रखे हैं मुझे. ये मोनिका शेरगिल बैठी हैं यहाँ पर, बैठी हैं. हाँ, ये बुलाते रहते हैं पूरा टाइम मुझे. तो आपका कैसा रहा साहब? ये इस फिल्म के बारे में बताएं, थोड़ा सा रोशनी डालते हैं इस पे. ये फिल्म एक दिल्ली के काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लब में सेट है, जहाँ पर काफ़ी एलीट दिल्ली की जनता है. वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा क्राइम हो जाता है और एक दरियागंज टाइप के पुलिस ऑफिसर आते हैं और उनके लिए ये सारी दुनिया बहुत नई है, तो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. हू डन इट है और काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी वाइल्ड है. क्या बात है साहब. संजय सर, आपका तो मतलब घरेलू मामला हो गया नेटफ्लिक्स के साथ. आपकी फिल्म भी आ रही है, महीप जी भी यहीं रहती हैं. हाँ, अभी बगल में अभी मैं मिला उनको. अच्छा. हाँ, रात को टीवी लाता, शिफ्ट हो गया था, तो इट वाज नाइस. थैंक्स टू नेटफ्लिक्स आई जस्ट मेट हर. कैसा लग रहा है आपको नेटफ्लिक्स के परिवार के साथ? वो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा है कि हम पूरी फैमिली को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया नेटफ्लिक्स ने. तो हम दो तो कर ही रहे हैं, बॉलीवुड भाई, फिर फेम गेम हुई, अभी मर्डर मुबारक, अब मेरी क्रिसमस भी आएगी नेटफ्लिक्स में. 2 बच्चे भी रेडी हैं, वो भी आ जाएंगे थोड़े थोड़े जल्दी से. क्या बात है साहब. मैं कह रहा हूँ ये यूपीएससी के बाद सरकारी नौकरी का दूसरा फॉर्मेट यही. टिस्का और सोहेल, आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो मैंने सुना बड़ा गॉसिप वाला है. ठीक है, तो आप दोनों 1 to 10 के अगर मैं बोलूँ कि आप लोग किसको मानते हैं कि गॉसिप तितली कौन है, कौन है गॉसिप एनिमल, या आपका क्या अनुभव है पर्सनली? आपको देख के लग रहा है कि तितली कौन है यहाँ पे? आइडिया हो रहा है कि तितली कौन है यहाँ पे? गॉसिप आई डोंट नो, बट यस अगर कैरेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स जो ये दिल्ली का क्लब है और मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे अगर आप मॉल में भी जाएं तो 8 इंच की हील्स, उस पर डायमंड लगे हुए हैं, उनके इयररिंग्स देख के डोर नॉब्स की याद आती है. तो मतलब उस तरह की लाइफ है और उस तरह के क्लब के बारे में है, तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ गॉसिप की तितली, वेरी मच सो. जी 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 जी. और सोहेल पे क्या है? गॉसिप की तितली तो मैं ही हूँ. मेरे को एक्चुअली लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद है, चाहे वो कुछ भी बता दें. गॉसिप का एक रूल होता है साहब, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रेडेड. Yes. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट. तुमको अगर गॉसिप चाहिए तो बदले में एक चिपकानी भी पड़ेगी. ठीक है, तो आप एक गॉसिप तो देके जाओ यार, हमको कुछ तो बताओ. मतलब नहीं, मैं वही यही तो लोगों का भरोसा है ना कि मैं कुएं की तरह हूँ. मेरे अंदर बातें डाल दो और फिर निश्चिंत रहो कि किसी को पता नहीं चलेगी, पर मैं सब सुनता हूँ. अरे हम बाल्टी लेके पे निकालेंगे. ये है पार्टी एनिमल. अच्छा. बाल्टी डाल के निकालेंगे गॉसिप. ठीक है साहब, अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए हमको साहब. आपका तो दोनों का गॉसिप वाला है, और आप क्या इंस्पेक्टर हैं? मैं एक वकील हूँ. अच्छा. जो प्रो बोनो फ्री में केसेस लड़ता है.
कहीं पर चोट खाया है लग रहा है लाइफ में कि फ्री में वकील बना है, वाह, तो कहीं दिल टूटा होगा शायद इसका तभी इतना जो है कि वकालत याद आ गई इसको, खुद को डिफेंस करना सीख रहा है ये। सीख रहा है। नहीं, मैं ये क्लियर कर दूं, मैं गॉसिप की तितली हूँ, मेरा कैरेक्टर नहीं। मेरा कैरेक्टर जो है वो कभी बहुत सारे नशे वगैरह करता था, ड्रग्स में था, अब वो शायद छोड़ चुका है और कभी कभी रिलैप्स थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पर वैसे शरीफ है। वाह साहब, आप लोग, हाँ जी आप। ये लोग अपने बारे में सही नहीं बता रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूं, ये गरीब है और एक अमीर क्लब में ढोंग करते हैं। ये गरीब है, ये सही नहीं है, बहुत गरीब है ये। और ये, हाँ, ये मैं बोल नहीं सकती, पर बाद में बताती हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए। हाँ, नहीं, ये बताइए। मतलब देखने के हाथी के दांत वर्जन है ये, समझे आप? और कौन है? मेरे ख्याल से पंकज त्रिपाठी भी हैं साथ में आपके? काफ़ी लोग इस मंच पे नहीं है। सारा अली खान है, पंकज त्रिपाठी जी है, डिम्पल कपाड़िया मैडम है, करिश्मा कपूर है, देवेन भोजानी है, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आशिम गुलाटी, वो भी हैं। अच्छा, वो भी हैं इसके अंदर, माशाल्लाह से साहब। बाकी सब लोग से तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया, पर पंकज भाई का एक मैसेज हमारे पास है, हमको लगा उनसे तो पूछ ही लेना चाहिए कि आप नहीं आए तो क्यों नहीं आए, तो बताएंगे प्लीज़ प्ले। उनका मैसेज है आप सब लोगों के लिए। नमस्ते, आज यहाँ आ नहीं पाया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को मुबारक हो, मर्डर मुबारक। कैसा लग रहा है? कौन होगा कातिल? 15 मार्च को आइए हमारे साथ इस जांच पड़ताल में जुड़ जाइए। रहस्य, रोमांच, सस्पेंस और मनोरंजन से भरपूर है ये मुबारक। थैंक यू। नेक्स्ट इन नेटफ्लिक्स। Presenting Dabba Cattle, guys, huge round of applause to the team. फरहान भाई, एक्सेल का जो है स्टोरी टेलिंग के साथ बड़ा एक नाता रहा है। प्लीज़ पुट सम लाइट ऑन दिस एसोसिएशन विद नेटफ्लिक्स, और आप लोगों का किस तरह के संबंध है? यार, मैं सिर्फ सिंपली ये एक बात कह सकता हूँ कि हमें कहानियाँ बनानी पसंद है, उन्हें दिखानी पसंद है, तो यही चीज़ है। तो इट्स बिन अ ग्रेट एसोसिएशन, देयर इज़ मेनी मोर शोज टू फॉलो, मगर ये एक बहुत ही एक एक्साइटिंग शो है हमारे लिए। ख़ास तौर से स्पेशल तो है मेरे लिए क्योंकि जो क्रिएटर हैं शो की इज़ शिबानी, so that always that gives a special place to the show in my heart, and to have people like Monica, Tanya, Swati, Ruchika looking out for the show, it's absolutely a pleasure. I couldn't have asked for anything better. वाह साहब, कासिम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जितने केमिकल्स उतने चैलेंजेस होते हैं साहब, इस शो में बड़ा कुछ हो रहा है ना? तो एज ए प्रोड्यूसर व्हाट इज़ योर टेक कि कैसे सिमटा रहे सब कुछ, क्योंकि कहानी तो फैलती है। ये एक बहुत यूनिक कहानी है, हमने इस किस्म की कहानी पहले नहीं की है, तो इट्स स्पेशल बिकॉज इट्स विथ नेटफ्लिक्स, इट्स आवर फर्स्ट विथ नेटफ्लिक्स, वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। इश्यूज़ तो कुछ खास हुए नहीं, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से संभाल लिया, तो बट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट द राइट काइंड ऑफ कास्ट दैट यू वांट, एंड वी गॉट लकी विद दैट, एंड दैट्स दैट। अब्बास, इतना बड़ा जब ऐसा शो होता है जिसमें इतने सारे लोग हों, इतना सारा एंसेंबल हो, इतने सारे कैरेक्टर्स हों, तो उनकी कास्टिंग का क्या एथिक रहता है कि कैसे करना है, कि किसी को बोल दिया और उसको बोल दिया कि सब कर दो? व्हाट इज द प्रोसेस अबाउट? नो, आई थिंक फॉर दिस वन, एंड आपने देखा ऑलरेडी सिजल में कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे. Not only are the women who form the cartel sort of the primary characters, but there are also lots of significant other characters on the show as well. तो मैं ही कहूँगा बड़ी जद्दोजहद के बाद ही अराइव कर पाते हैं ऐसी कास्ट के साथ. कुछ luck plays a part, like Qasim said, and I think for this show we worked as a team. So there were opinions, thoughts, ideas which came from the core team all around for the various parts, and we were lucky that we could get some of the best actors in the business on the show. Thank you very much. Shibani,
you're the showrunner of the show, and how did this idea reach to you, and how did you approach it, and what did you think कि ये मुझे कहानी बनानी है, this is what I want to make? So, you know, it's been such a long process, and I think the interesting part is that when you start with a tiny little idea in your head, and then you meet with writers, you work with Excel as partners, Netflix as partners, you have an incredible director like Hitesh on board, this tiny little seed that's planted suddenly begins to grow. And to watch this process come to life, to watch the show come to life, creatively, collaboratively, it's such an incredible experience. It's surreal. Obviously, with anything that you create, there are ups and downs, there's emotional turmoil, there's joy, but just to be a part of this process has been so fulfilling, and I couldn't have asked for more as a creator. Obviously, I'm working with my husband, I'm working with incredible producers like Qasim and Abbas, who have really mentored me through this experience because it's a first-time experience for me. Working with Hitesh has been wonderful. I mean, he understands the characters and the journey in a way that you can only hope for as a creator, because you want your vision to be in line with the people that you're working with. And that's really what's happened in this process, and I'm really, really grateful for it, and I can't wait for all of you to see it. Sorry, that was a really long answer. नहीं, पर relevant answer. हितेश, आपकी बड़ी तारीफ हुई है, इसके अंदर 2 बार आपका नाम लिया गया है, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालें. बताइए आपको, what do you think, how do you approach a project like this? There are so many people, there are so many tracks to follow. Which one is your favorite? I think इतनी बात हुई है मेरे बारे में, तो I think it's a very easy question. मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर मुझे लगता है मैं खुद ही हूँ, हितेश भाटिया. But jokes apart, I think when you spend such a long time, you know, developing this project and spending so much time on the characters and all that, तो मुझे लगता है कि किसी एक चीज़ को choose करना बहुत मुश्किल है. For something like this, all the characters have come together, you know, to create a unique world. तो हर शो की जर्नी में different points पर different characters थे जिनके साथ मैं relate कर रहा था. But I think when they all come together, so it's really impossible to choose one. So I think बहुत exciting है. बहुत exciting universe है, as everyone has contributed to this entire thing. So very beautiful characters coming together to tell a very exciting tale. माशाल्लाह, बहुत-बहुत मुबारक साहब आपको. डब्बा काटल का huge round of applause for डब्बा काटल. Please, I would request you to please come on stage. बेवफाओं को याद किया है कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है. ऐसी एक शेर है कि उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए. समझिएगा जरा, अगर दिल टूटा है तो आवाज लगाएं. अरे लगाओ भाई आवाज, दिल टूटा शक्ल पे दिख रहा है तुम्हारी. कि उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे मगर आगे जरूर बढ़ गए. तो इंसान का जब ब्रेकअप होता है, सबका अलग तरीका होता है डील करने का. कुछ रो लेते हैं, है ना, कुछ बाल कटा लेते हैं लोग, है ना. हाँ, पर पंजाब में साहब अलग रवैया है. वहाँ पे अगर किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो वो लोग गेड़ी मारने निकल पड़ते हैं कि उठाई गाड़ी चल दिए दोस्तों के साथ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है. उन लोग थेरेपी में बिलीव नहीं करते, उन लोग गेड़ी में बिलीव करते हैं. ठीक है कि दोस्त के साथ गाड़ी चलाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाए. चाहे ग्रेजुएशन हो, प्लेसमेंट हो, गर्लफ्रेंड से सेटिंग हो रही हो, सेटिंग टूट रही हो, बैचलर पार्टी हो, और अगर ब्रेकअप हो जाए भाई साहब और उसका क्लोजर करवाना हो, तो उससे बढ़िया रोड ट्रिप दोस्तों के साथ मुझे नहीं लगता दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती. मानते हैं आप लोग? अब इसी कहानी को अगर लव रंजन को दे दिया जाए भाई साहब, समझ गए ना कौन आदमी है ये, ठीक है ना. तो जो सिनेमैटिक यूनिवर्स दोस्ती का बनेगा, जो नुआंस उसमें आ जाएगा, और जो कॉमेडी वगैरह रहेगी, मतलब इस तरह का प्रदर्शित होगा कि मौज आ जाएगी. तो आइए चलते हैं साहब, मोस्ट एपिक पोस्ट ब्रेकअप रोड ट्रिप ऑफ 2024, प्रेजेंटिंग यू साहब वाइल्ड वाइल्ड पंजाब. लव सर, आपसे शुरू करते हैं. ऐसा हमारी टीम का मानना है, सब लोग ये कह रहे थे कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं जिनमें दिल टूटा होता है, ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आ रही होती हैं. तो थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे. मेरी अधिकतर ना औरों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं. तो क्या आप वो दोस्त हैं जो गाड़ी चला रहे थे? हाँ, तो मैं हमेशा ये देख रहा होता हूँ कि दोस्त अपनी क्या मरा रहे हैं, कैसे मरा रहे हैं,
क्या होता है, अपने ऊपर जब इंसान के बीत रही होती तब किसी को हंसी नहीं आ रही होती, जब दोस्त पे बीत रही होती है तो आपको उसमें कॉमेडी दिखती है। सही ये सही हो रहा है। साहब अंकुर कहाँ है? हाँ, आप माइक उठा लीजिए साहब। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ साहब, कि ये शूट बड़ा दिन चला साहब इसका। प्री कोविड पोस्ट कोविड सब हो गया इसमें। तो जब ऐसा चल रहा होता है मामला कि काफ़ी दिन से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे प्रोड्यूसर क्या रोज़ जान कटती है कि लगा हुआ सेट खराब हो रहा है। ठीक है, वो तो फिर भी छोटा मैटर था, पर ये जो शूट हुई है उसमें एक्चुअली हमारी लग गई। दिसंबर जनवरी में हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे। पूरी की पूरी पिक्चर मोर और लेस पूरी की पिक्चर सड़कों पे शूट हो रही थी। 6 एक्टर थे, पर लेकिन हाँ जान तो निकली हुई थी। ठंड भी है, रोड ट्रिप वाली फिल्में शूट करना है साहब डिफ़िकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सिमर आप हैं साहब, डायरेक्टर हैं, मुबारक हो भाई पहली बात तो। प्लीज़ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टैलेंटेड बॉय, इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स आल्सो। ठीक है, कैसे? हाँ हाँ, तो आप साहब भाई साहब का सर आशीर्वाद पहले कैसे तो मिला? अगर डायरेक्टर बैठा हो तो प्रोड्यूसर से ये सवाल मत पूछा करो प्लीज़ कि इतने दिन शूट कैसे चल गया। ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा था कि आपका तो मतलब एक्टिंग का भी काम अपना थोड़ा थोड़ा चलता ही है ना। फिर जब ऐसे बड़े लोगों का हाथ जब अपने सर पे आए तो फिर कैसा लगता है कि सब करने मिलता है, या ऐसा रहता है कि सर ये ठीक लग रहा है क्या? सर मैं आगे बढ़ूँ कैसे? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट लव सर एंड अंकुर सर विद मी, जिन्होंने मुझे लाइक कंप्लीटली फेथली उन्होंने मेरे को छोड़ दिया इन बदमाशों के साथ, जिनको संभालने में मुझे बेबी सिटिंग जैसा फील हुआ। बट देर ऑल वर वेरी खूबसूरत पीपल ऑन सेट एंड और एक दूसरे के साथ ऑलरेडी फ्रेंड्स है, तो बहुत ही बुरा था मेरे लिए कि यार ये इतनी बदमाशी कर रहे हैं तो मैं कैसे संभालूँ इन लोगों को। बट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो इट वाज नाइस। साहब आप लोगों से हमारा एक अपने हिसाब से जवाब दें सब लोग बारी बारी से, ठीक है? कि ये जो ट्रैवल प्लस ब्रेकअप का ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप अपना ट्रैवल का बता दीजिए या ब्रेकअप का बता दीजिए, दोनों में से एक कोई सर। जैसे भी आपसे शुरू करते हैं। सुनाई नहीं दिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूं साहब कि या तो मैं बता देता हूँ, या तो जी ट्रैवल का बता दो अपने जिसके अंदर बहुत ही वाइल्ड चीजें हुई हो, एक कोई किस्सा शॉर्ट में, या ब्रेकअप का बता दीजिए जिसके अंदर दिल टूटा और आपने तोड़ दिया टीवी अपने ही घर का। ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो घर वाली देख रही होगी। कह रहे घर वाली देख रही होगी, ब्रेकअप का तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ट्रैवलिंग लाइक पंजाब में जैसे आप भी आते हो हमारे पास, आपको पता ही है कि हमारा क्या रहता है वहाँ पे। बट ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये उसके बाद ही हो सकता है कि जो फन हमने ट्रैवल में किया जो इस फिल्म में देखने को मिलेगा वो पीने के बाद ही हो सकता है। तो हमारी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा कुछ पीने के बाद, उसके बाद जो दिमाग घूमता है वो सारा स्टोरी। ये मेरा एक अनुभव रहा है। ये पंजाब में जब मैं जस्सी भाई से हमारी रेगुलरली जब भी मुलाकात होती है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पिलाने 2 पैग लेके जाते हैं, ले जाते 200 किलोमीटर है। ये जैसे हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट होता है ना स्टोनर फिल्म, हाँ ये ड्रंक फिल्म है। वाह क्या बात साहब, ठीक। पत्र लिखा आप बताइए साहब, व्हाट इज योर ब्रेकअप एक्सपीरियंस? It's strange, but I'll still share it with you guys. Please, that's हम तो खुद ही गॉसिप चाह रहे थे। तो मेरा राज के साथ ब्रेकअप हुआ था इनिशियली, और मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ बॉम्बे छोड़ के। तो मेरा माय बेस्ट फ्रेंड, आई वेंट विद हिम टू गोवा। ठीक है, वहाँ जाके उसने मुझे बहुत बोला कि मत रो, ठीक हो जाएगा, तू अपने करियर पे फोकस कर। तो मैंने लगा ठीक है कर लेती हूँ। फिर मैं वापस आई एंड आई गॉट बैक with Raj, and my friend didn't know this, and he saw us on TV, and he was so angry. So are you still friends with your best friend? Yeah. I don't think so he trusts you anymore. Yeah. मंजूत भाई साहब आपका क्या है? बाजी मेरा बहुत बुरा हुआ। अभी चल रहा है ब्रेकअप, मेरा चलता रहता है। उसका ब्रेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ही बंदी से चल रहा है या ये बहुत सारी कर ली थी? जितने भी किस्से हैं मैं उनमें से एक किस्सा बताता हूँ। मैं पुणे में शूट कर रहा था आउटस्कर्ट्स में, और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था 1 हफ्ते तक। तो जब मैं पुणे सिटी वापस आया शूट ख़त्म करके, तो मेरे को मैसेज आता है मेरी किसी फ्रेंड का जिससे मेरी बातें हो रही थी कि आई गॉट एंगेज्ड। और जैसे ही मैंने टीवी ऑन होता है, मैं होटल रूम में जाता हूँ, वो चाबी डालते हैं ना, लाइट जलती है, टीवी चला, और एकदम से गाना, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ रहा हूँ कि आई गॉट एंगेज, और एकदम से गाना चला, वो छंद से जो टूटे कोई सपना। मतलब लेजिट मेरा मैं रोया भी था वहाँ पे। आपको शायद अभी मज़ा आ रहा होगा सुन के, पर मेरा दिल बहुत दुखा था बाजी।
जब किसी ये से जब भी प्यार रोता करो है- और वो ना मिले, ये जब भी रोता है तो हमारे पास ही आता है। मजे ही आता। अच्छा, आप लोगों के हाँ, पास नहीं, आता है? हमारे पास ही आता है फिर। अच्छा अच्छा, आपका बताइए ना, आप ऐसे मत निकलिए, आप बताइए सर। ब्रेकअप होते हैं, किसके नहीं होते, किसके सभी के लिए होते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हो आप। हाँ। तो फिर नेक्स्ट। ये गुड लुकिंग लोगों को लगता है कि लाइन ही लगी पड़ी है। फिर नेक्स्ट कि ब्रेकअप होगा फिर क्या करना होता है, अगली ढूंढनी होती है। वो खड़ी है दरवाजे के बाहर, आपको बोलना चल, वो रेडी है। ब्रेकअप के बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट वो ब्रेकअप का वेट कर रहा होता है। हाँ। आप ब्रेकअप को उल्टा सोच रहे हो कि ब्रेकअप हो गया है। हाँ। सनी वेट कर रहा होता है कब होगा, कब होगा, कब सनी होगा। इतनी लाइन लगा चुका होता है कि नहीं, मैं बहुत सीरियस अगला भी पूछ रहा होता है कि भैया क्या हुआ तुम्हारा। मैं सीरियसली ब्रेकअप करता हूँ। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप भी। ब्रेकअप का मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मैं जलंधर से हूँ, तो हमारा ना ग्रुप होता था भाई, जे टाउन बॉलर्स। अच्छा। ऐसे ही हम कूल बनते थे वहाँ पे। हाँ। तो मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसका ब्रेकअप हुआ, मतलब उसका उच्च कोटि पे प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, और एकदम उच्च कोटि का प्यार चल रहा था एक बंदी के साथ, ठीक और है। मतलब फुल गंभीरता के साथ उसका प्यार था। उसका ब्रेकअप हो गया और उस लड़की की शादी हो गई, मतलब वाह। हो रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब उसकी मतलब लगी पड़ी थी और सब कुछ है। तो सारे जो भी हमारे गैंग के बंदे थे, हमने कहा यार कोई बात नहीं, शादी शुदी होगी है, अपन ना ट्रिप ट्रूप मार के आते हैं कहीं पे। तो किसी ने बोला गोवा चलते हैं, किसी ने बोला दुबई चलते हैं। तो बीच में एक हमारा दोस्त था, कहता भाई मदर नेचर के पास चलते हैं, बाली। तो हम गए भाई बाली, और हमने सोचा था कि उस लड़की का नाम शिवानी है, कि शिवानी की कोई बात नहीं करेगा उस पर। हम बाली पहुँचे और हमने वहाँ पे पूरा चेक इन वगैरह करा, चिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। जैसे ही हम लंच पे नीचे गए हैं, सामने बैठी हुई थी शिवानी अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई हुई थी, सेम रिजॉर्ट के अंदर। आउच। तो सिद्धार्थ के साथ जो हुआ, उसका हैप्पी बर्थडे। और जिस दोस्त ने बोला था ना कि भाई मदर नेचर के पास जाते हैं, मदर नेचर के पास तो नहीं गया वो। तो उसका भी हैप्पी बर्थडे मेरे ख्याल से वो हो गया, सौतेली माँ के पास चला था। इशिता, आपके ब्रेकअप में मेरे ख्याल से ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड है। करण बताइएगा आप तो। ब्रेकअप बहुत आई डोंट नो आई शुड बी शेयरिंग दिस और नॉट, लेकिन You should be. I चलो think you जस्ट can. इन द स्पिरिट। Yeah. तो सो आई वाज डेटिंग समबडी बैक देन कॉलेज, और ही वाज थोड़ा आई थिंक सो 4-5 years एल्डर। तो उसके बाद हो गया ब्रेकअप, किसी भी मतलब कॉर्डली हो गया ब्रेक। तो उसके कुछ 1 साल बाद उसकी फैमिली सारे प्रेशराइजिंग हिम कि शादी कर लो, शादी कर लो। सो ही केप्ट मैसेजिंग कि कुछ है, सीन है, हो सकता है पैचअप। मैंने कहा नहीं नहीं, यू प्लीज़ मूव ऑन, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, तो लो ना, मतलब स्टार्ट सीइंग गर्ल्स। सो फाइनली ही लाइक द गर्ल और सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि जब तुम्हारे हाथ से कुछ चले जाता है, जो वो 1 साल तक था तो लगता था ठीक है, नहीं नहीं, इट्स दिस इज़ द वे इट शुड बी, ठीक है, वी गुड एज फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि आई एम एंगेज्ड, तो तब तक ठीक था। फिर उसका रोका हुआ और उसने जब मैसेज करके फ़ोटो भेजी, मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी ब्रेकअप करके, कि यार एक्चुअली प्यार तो करता था। तो फिर आई वेंट ऑन द, रोका नहीं, कुछ एंगेजमेंट, कुछ छोटी सी पार्टी रखी थी, तो वहाँ पे ही केम टू मी एंड इट वाज लाइक अ स्पिंस्टर, लाइक अ बैचलरेट, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो प्री पार्टी होती है। सो yeah, like the singles, all the friends together. So उस पार्टी में he came to me and said कोई चांस है अभी? और मुझे लगा शादी की कि- पार्टी में लड़का कह रहा है और कोई चांस है उसकी अभी, engaged- उसके लिए आपको इशिता राज जैसा दिखना भी पड़ता है कि अगला तो लास्ट मुझे- मिनट तक ट्राई कर रहे हैं। नहीं, तो फिर मैंने एक्चुअली जब उसे मैसेज किया था ना, जब मुझे फीलिंग हुई कि ये मिस हो गया है, तो मैंने फिर लिखा आई थिंक सो आई मेड अ मिस्टेक। तो फिर अगली जब पार्टी, हम इस पार्टी में आए, तो उसने बोला कि एक्चुअली कोई चांस है, तो मुझे लगा नहीं नहीं, अब तो ज़्यादा हो जाएगा, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू फॉर। मैं कहा नो 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 नो, यू कैरी ऑन विद इट। वाह साहब वाह, अगला का बेचारे का जो है ख़राब किस्मत। भूषण साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका और लव सर का जो एसोसिएशन है वो शुरू से चल रहा है, इतनी सारी फिल्में आप लोगों ने कर दी, व्हाट इज दिस बॉन्ड अबाउट? इज दिस ऑल्सो योर फ्रेंडशिप? आप लोग भी क्या गेड़ी पे जा रहे हैं साथ में, क्या है ये साहब? सी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक स्टूडियो और दोस्ती के अलावा एक स्टूडियो और एक डायरेक्टर और एक क्रिएटर के बीच में ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इनकी कहानियों पे ट्रस्ट है, इनके जिस तरीके से ये कहानियाँ डेवलप करते हैं उस पर ट्रस्ट है। तो तभी उसी का नतीजा है कि हमने इतनी सारी फिल्में साथ में की हैं और अभी भी और बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है और बहुत पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने और सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड मेनी मोर विच वी आर डूइंग टुगेदर।
Wow, congratulations to all of you. Huge round of applause for this film. Wild Wild Punjab. We wish you the best. साहब ये पता नहीं जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मिलेनियल्स हैं, जो प्लीज गिव अ चीयर इफ यू आर इन द रूम. अच्छा है ना, नहीं है, ठीक है. पहले मैं लोगों को बोलता था कि जिसको भी विनोद कामली रोता हुआ याद नहीं है, मैं उनको नहीं गिनता हूँ, ठीक है. फिर मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं है. ठीक है, ये मतलब और जो लोग 80s और 90s में पैदा हुए, गिव मी चीयर. ये हमारी सबसे हॉरिबल मेमोरीज में से एक है, आना हाईजैकिंग. और उस वक्त जो है न्यूज़ चैनल्स नए नए आए ही थे और बस बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट था उसके अराउंड और बहुत दिन वो चला. तो एज ए डायरेक्टर जब आप इस तरह की कहानी, जो लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस भी है, हमने बहुत फॉलो भी किया है उसको, न्यूज़ में देखा भी हमने उसको बहुत सारा है. तो ऐसे में अब उसमें तो बहुत सारे पहलू होते हैं ना. तो एज एन डायरेक्टर, एज ए क्रिएटर, व्हाट डू यू चूज़ कि यार मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ. चले 100 चीज़ें हो रही थी, पर मैं ये 5 फिल्म में, तो मतलब एक लिमिटेड चीज़ है ना जो आप कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं. तो क्या है वो कोर इमोशन, क्या है इस कहानी का, किधर आपको लगा कि मुझे इसको ऐसा लेके जाना है? यार वो जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो एक तो 5-6 बातें हैं जो हर आदमी को, जिसको वो हाईजैक याद है, उसको वो 4-5 बातें 6 बातें मालूम है, याद है. पर इतना बड़ा हाईजैक जो 7 दिन चले, वो 5-6 बातों के बारे में नहीं हो सकता. सही बात. वो हाईजैक क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो ये आसान है कि हमने कुछ लोगों को छोड़ा हमारे बाकी लोगों को बचाने के लिए, पर उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ. तो जब मैं उस बारे में पता करने गया तो मुझे समझ में ये आया कि बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी थी, बहुत कुछ हुआ था उस 7 दिन में जो किसी को पता नहीं है. तो मतलब मैं उस वक्त के ऑफिसर से जो इन्वॉल्व थे इस पूरे एपिसोड में, उनसे मिला. बहुत सारे लोगों से, त्रिशांत मिला जो पैसेंजर्स थे, पायलट थे. तो बहुत सारा कुछ निकल के आया जो शेयर करने जैसा था. और वो सारा कुछ है इस शो में, इसलिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स. त्रिशांत ने माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट लिखी है एक, जो सबको फैक्चुअली करेक्ट रखते हुए भी ड्रामेटिक रखना, एंगेजिंग रखना. इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा. पूरे 2 साल निकल गए. मोनिका ने मुझे बोला था 6-8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसे 2 साल लग गए. अभी मोनिका से बाहर बात करता हूँ मैं. वाह साहब, जितना वक्त लगता है उतना जो है गाढ़ा होता है काम, है ना. इतना क्योस होता है इस पूरे, वो जो पूरा जो कहानी है वो इतने क्योस की है. ऐसे में एज एन एक्टर, हाउ डू यू कीप योर काम टू बी पार्ट ऑफ दैट क्योस? विजय, इफ यू कैन. मैंने इसमें तो, क्योंकि ऐसी घटना हुई जो जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सकता. मतलब हाँ, फ्लाइट सिमुलेशन या ट्रेनिंग के टाइम पे हर पायलट को सिखाया जाता है कि ये अगर कोई आके ऐसे कोई हाईजैक करने की कोशिश करे तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करना. लेकिन जब होता है तो क्या बीतती है, क्योंकि मेरा खुशनसीबी थी कि कैप्टन हैं और उन्होंने मुझसे मिले. हम लोग साथ में फ़्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए गए. मैं उनके साथ बाजू बैठ के देखा कि उन्होंने क्या क्या किया. फिर मैंने अपने हाथ थोड़े चलाए उस सिमुलेशन मशीन पे, और जितना डर मेरे अंदर पैदा हुआ उस टाइम पे, वो मैंने स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर दिया. वाह. मैं एक अनुभव सर जो है, हम सब के साथ, हम इनको लुकअप करते हैं. सब लोग जिस तरह की फिल्में ये बनाते हैं, जिस तरह की कहानियाँ चूज़ करते हैं और जिस तरह से ये फिल्म बनाते हैं, वो भी एक बड़ा यूनिक तरीका है. एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा आपको. लखनऊ में एक फिल्म का शूट चल रहा था इनका, ठीक है, और उसी होटल में मैं भी था, कुमुद जी वगैरह सब लोग, हम लोग सब थे. तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि शूटिंग देखने आओगे क्या, कुमुद भाई ने मुझे कहा. तो मैंने कहा हाँ, मतलब पर आप लोग तो काम करोगे ना. बोले नहीं, हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है. तो इतनी बड़ी कास्ट रहती है कि साइड में एक पूरी IPL की टीम खड़ी हो सकती है आपकी. कुमुद भाई, इस बार क्या रहा, मैच वैच कैसे रहे आपके, थोड़ा सा बताइएगा. बहुत मज़ेदार रहा. मतलब आप मनोज भाई हैं, देवूदा हैं, और तो हमारी तो अय्याशी थी. बस हम लोग काम करते थे और खेलते थे बस. यहाँ बहुत मज़ेदार रहा. वाह. देवूदा, 4 कंट्रीज़ में आप कहाँ कहाँ हुआ है? बाकी इन्होंने कह दिया है कि कितना मज़ा लेते थे. हम कभी कभार काम कर लेते थे, लेकिन घूमते ज़्यादा थे, मस्ती ज़्यादा करते थे.
सो ऐसा ही है हमारा सेट, फन है, मतलब किसी का पैकअप हो भी जाए तो वो घर नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, नहीं वो नहीं घर नहीं जा सकता, वो उधर ही बैठेगा जब तक सबका हो जाएगा फिर जाएगा वो। तो ऐसा ऐसा था हमारा पूरा हिसाब। जैसी जैसे जैसे निकलने की बात करती थी कि आज बनारस से कुछ पूड़ियाँ आई हैं। हाँ, एक खाने वाने का भी, मनोज भाई जरा आप बताइएगा खाने वाने का क्या हिसाब है? बहुत मैंने सुना बहुत तरह तरह का खाना आता रहता है सेट पे। आप लोग आदमी कोई डाइटिंग करना चाहे तो इनके सेट पे तो 4-5 किलो वजन ही बढ़वा जाए। नहीं, हमने तो सोचना छोड़ ही दिया उस बारे में। हम तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सिन्हा साहब के सेट पे काम करने का मजा यही है कि जो भी तैयारी खुद करनी होती है और जो एक्टरों से करवानी होती है ये पहले ही करवा लेते हैं। सेट पे तो मस्ती करवाते हैं बस, भाई आज खाना लखनऊ से आ रहा है, आज वहाँ से आ रहा है, यही सब चलता रहता है। तो मज़ा आता है काम करने में इनके साथ, बहुत बढ़िया। पत्र लिखा, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस सर के सेट पे मतलब हम लोग सब, मैं एटलीस्ट जाती थी, हंसते खेलते कूदते मज़ा कर रहे हैं, पर अचानक से समथिंग शिफ्ट्स। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू कि अच्छा आज ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पत्रा तू अभी अपने उस स्पेस में। ही डजंट टेल यू एनीथिंग एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद हिम। तो एक बार ये शूट ख़त्म हुआ, मैं गई मेरे दूसरे शूट में। जाकिर, आई कुडंट come out of what I experienced. It was actually quite difficult for me and it took me couple of days to get out of it. और उसके बीच में हम खा रहे, कूद रहे, बीमार पड़ रहे, खास रहे, सब कुछ together. It was like a big fat family. पर खाना सबसे important. मैं कह रहा हूँ खुद जो है सब लोग खाना वाना करते रहते हैं, खुद गुड लुकिंग हुए जा रहे हैं बार बार, ठीक है ना? हम बच्चों को खून पी के वही है क्या? मैं ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। प्लीज गाइस, एक फोटो आपके लिए, आप लोग आप यहाँ आ जाइए, ठीक है? तो राहुल किस तरफ बैठे? अच्छा, आप लोग तीनों एक साथ बैठे हैं। हाँ, तो साहब ये हमारे घर के बड़े हैं, इसीलिए सब इनको समीर सर कहते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस टीम बाय द अमेजिंग क्रिएटर्स, समीर सर, राहुल और खन्ना साहब। एक जो आप लोगों से हमको पूछना है कि क्या होता है कि फिल्म में तो बहुत चीज़ें आ गई होंगी, केसेस आपने सुने होंगे बहुत सारे, ठीक है? पर ऐसा क्या आपको लगा कि यार कौन सा केस था जो आपका वो था इंडियन आइडल जिसको बोलते हैं ना कि इस पे शो बनना चाहिए, वो किस तरह के केसेस थे जो आपको लगा, जो रिसर्च के दौरान आपको मिले? यार एक्चुअली काफ़ी अतरंगी केसेस पढ़ने में आए, सुनने में आए। इमेजिन नहीं होता कि यार ये चीज़ हुई है क्या। ऐसे एक हेडलाइन मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद है कि कुछ ऐसा था कि पिता ने बेटी को 7 बार लूडो में हराया, बेटी ने करी FIR, बोली हरा के नाचते भी थे। आपने कहा यार ये क्या है यार, कि बेटी को ये तो पहला लोड ये कि 7 बार लूडो में हराया, दूसरा ये कि नाचने के जीतने के बाद नाचते भी थे। तो कहा ये बहुत अतरंगी है, इस पे FIR बनती है भाई, FIR बनती है इस पे। ये तो प्रॉपर जो है ह्यूमिलिएशन है। इसलिए मैंने ये सीख ले ली इससे एटलीस्ट कि यार अगर मैं अपनी बेटी के साथ लूडो में खेल रहा हूँ तो अगर किस्मत से जीत भी जाऊँ नाचूंगा नहीं। हाँ, ये FIR का पूरा चांस है। एक मैंने एक कोर्ट केस सुना था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई पे किया था। सुनिएगा साहब, आप लोगों के लिए भी है इस तरह के केसेस हमारे देश में। बड़े भाई ने छोटे भाई पे केस किया था क्योंकि वो जो है बड़े भाई की सास को लेके भाग गया। बड़े भाई की सास को लेके, मतलब वो वाइफ की मदर को लेके भाग गया, भाभी की मदर को लेके भाग गया। तो अब वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है एज ससुर। तो घर में इधर भी हिस्सा है और उधर तो पूरा ही खा गया अगला, ठीक है? तो ये इस तरह के। खन्ना साहब आप? ऐसे बहुत सारे बथेरे केसेस है, एक काफ़ी सिमिलर था जो आपने बताया। इसमें बेटी ने माँ के खिलाफ FIR की थी कि जैसे लड़का लड़की तो फरार होते हैं, उसके पति मतलब लड़की का पति सास को लेके फरार हो गया था। क्या बात है, एकदम यही मामला था सारा। वाह, राहुल भाई? जी कई इंटरेस्टिंग थे, बट मेरा फेवरेट है जिसमें एक महिला ने केस किया कि गोलू मुझे गाली देता है और गोलू एक तोता है। वाह। तो कंफ्यूजन ये थी कि FIR गोलू पे हुआ है, गोलू की पेशी हो रही है। हाँ। और उस पे बहस चल रही है, तो इल्ज़ाम ये है कि गोलू को गाली सिखाई किसने। ये भी बात सही है। साहब आपका जो कैरेक्टर है रवि भाई, वो बड़ा जो है उसमें स्वैग है और बड़ा वो वेटरन है और उसके अपने एटीट्यूड हैं। तो वकालत के अलावा इस तरह का वकील बनने के लिए क्या लगता है?
एक तो चाम होना चाहिए, जैसे कि हम अपने हमारे यहाँ सुपरस्टार हैं, शाहरुख हैं, सलमान हैं, ऋतिक हैं, वैसे ही एक वकालत की ज़िंदगी में मैंने राम जेठमलानी जी को, एक साल्वे साहब को देखा था, अरुण जेटली साहब नहीं रहे, तो एक स्टारडम तो उसमें एक रहता है कि उनकी एंट्री भी वैसे होती है, एक बड़ी सी गाड़ी होती है और सब लोग उनको ऐसे देखते हैं कि मतलब अब गए और ये केस तो जीतना है, वो बहुत बड़ा स्टारडम। वैसे जैसे हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में वो स्टारडम तो होना चाहिए और वो बड़ा एक अलग स्वैग और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कि आप माहौल बना लेते हैं और उस हिप्नोटिज्म में ही आप केस को बाजी भी मार लेते हैं, जो मैंने महसूस किया। क्या बात है साहब, ज़रूरी होता है, माहौल बना रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए अनंत आपसे पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, ठीक है, क्या जुगाड़ू वकील हैं क्या आप इसमें? ठीक है। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। आप नहीं नहीं मैं आप क्या हैं? मैं जुगाड़ू मैनेजर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा। तो आई थिंक ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मैं सौरभ जी से पहली बार मिला और मैं इस थॉट के साथ ही गया था कि कोर्ट रूम ड्रामा हो रहा है तो शायद मैं एक वकील ही हूँगा, पर वहाँ पे पता चला कि मतलब मुझे लगा कि पहली बार ही ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे कि कोर्ट के मैनेजर के बारे में भी बताया जा रहा है। तो लॉयर्स तो हैं ही जो ये तीनों हैं और हमारे और साथी भी हैं, पर मैं अकेला इनको इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ, मैनेज करता हूँ। वाह साहब, आपका तो साहब फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स और आपका तो फर्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स भी है ये, हाँ, है ना? Yeah, what should I tell you? What should I tell you? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि what is the charm of working for the first time, Yeah. such a big platform Yes. for you as well, working with creators like them. An extremely special experience. It's comedy in such a non-stereotyped way. They've really broken the stereotypes with the characters they've chosen, with the way of projecting each scene, doing each scene. It's been an absolute pleasure. I think अब मुझे वो sorry to say, अब मैं एक हिंदी में इसको absolute translate बोलने का कर दूंगा। तरीका है जो सिर्फ बॉम्बे में लोग बोलते हैं, it's been an absolute pleasure। ये सबका absolute सेम कैसे, कहाँ सीख रहे हो आप लोग? ये हार्वर्ड से आई है ना, ये हाँ। ये So हार्वर्ड से आई है। actually मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। अच्छा। हाँ। आजकल ये हो गया ना, कोई भी अमीर आदमी अमीर नहीं मानना चाह रहा अपने आप को, कह रहा अरे कहाँ। लेकिन ये अच्छा है, मैं ये जोक से पार्ट पर नेटफ्लिक्स को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी हार्टलैंड के लिए एक ऐसा शो लाया जहाँ सबको लग रहा था कि गन्स और ये सारी चीज़ें लेके ही नेटफ्लिक्स आता है और डार्क होता है और सब साइको ही घूमते हैं यहाँ, वैसा नहीं है। और वकील लोग भी हंसते हैं, वकीलों की भी ज़िंदगी है, इनके कोट काले हैं, दिल काले हैं। तो धन्यवाद नेटफ्लिक्स, थैंक यू सो मच कि हिंदी हार्टलैंड के लिए मेरे सारे वकील और जजेस बड़े हमको धन्यवाद दोस्त, बड़ा अच्छा किए रवि बाबू, क्या बात है, बहुत बढ़िया है कि हम लोग की ज़िंदगी में भी ह्यूमर आएगा। और बहुत छोटी छोटी ह्यूमर है कि अपनी कुर्सी बांध के फॉयर की बातें, कुर्सी बांध दी और बाथरूम में लड़ रहे हैं लोग, कॉरिडोर में लड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनके छोटे इमोशंस हैं। तो ये बहुत थैंक यू, एज अ टच ऐसा वाला है। जाग लगता है, मैं कहता हूँ यही होता है वेटरन आर्टिस्ट, सही सवाल का सही जवाब। प्लीज गिव अ यूनिट ऑफ अप्लॉज फॉर रवि सर। निधि, आप तो खुद भी वकील हैं, मैंने सुना आपने एलएलबी किया है साहब, है ना? अब माइक दे दीजिए उनको साहब, ठीक है? हाँ। और मेरा बस ये जानना है कि मैं म्यूजिक से हूँ, ठीक है, मैं सितार मैंने सीखा है ज़िंदगी के 20 साल। तो शूटिंग में ना कई बार लोग बोलते हैं आप इसको से पकड़ लेना और ऐसे से कर देना। मैं कहा अरे नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे से मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने सीखा है, मुझसे नहीं होगा ये। तो ऐसे शूट के टाइम आपको लगा कि अरे ऐसे नहीं होता है, प्लीज़ गाइज मत करो ऐसे? तो सच्चाई ये है कि जब मैं कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रही थी, लॉ की पढ़ाई कर रही थी, तो रंग दे बसंती आई थी। तो रंग दे बसंती की एल्बम सब लोगों ने अलग अलग रीज़न से सुनी, सबका उस पर अलग अलग इम्पैक्ट था। मेरी लाइफ में मेरा फेवरेट गाना था आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी। तो आप जान लीजिए कि मैं किस तरह की लॉ स्टूडेंट थी। फिर मेरे 2 साल प्रैक्टिस के हॉरर जॉनरा में गुजरे, तो मैं जैसे तैसे छोड़कर आई, थोड़ा एक्टिंग की दुकान निकली, बात बनी, बात आगे बढ़ी। और फिर जब मुझे लगा कि लाइफ इज़ सो गुड, तो खन्ना साहब ले आए मेरे पास, मामला लीगल है, सुजाता नेगी, और मुझे लगा ओह आई एम बैक टू दिस वर्ल्ड। अरे बाप रे बाप। माशाल्लाह से साहब, आज रात को जो है आप लोगों को इस इवेंट के बाद इसकी यादें आएंगी, क्योंकि रात को फिर से आपको मामला लीगल है देखना है। कल ही सुबह, मतलब अब क्या रात ही को आ जाएगा ये, है ना? ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टीम।
कैसे हैं वो कैसे म्यूजिक अच्छा बजाया था है ना? हाँ बजाना बजाओ भाई, म्यूजिक बजा दो कुछ सभी, ठीक है? सुनील भाई, अरे हमारे बड़े हैं भाई साहब। ओहो अरे बाप रे, सबके हाथ ऐसे ही हो गए मीडिया वाले के परमानेंट ना, सब कैमरा के साथ। उनको लगा मिल गई रील मिल गई, शॉट मिल गया हेलो। भाई। पर अभी आपका है नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा आपका एंट्री। हेलो जी जी जी, थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद मतलब भाई आपका तो बड़ा शो है ना भाई, तो थोड़ी देर बाद वो एंड में आएगा वो। एंड में? हम एंड में क्यों आएंगे? क्योंकि भाई आपका शो बैंग बैंग करेंगे एंड में ना, मतलब ऐसे माहौल बन जाएगा फिर। बैंग तो शुरू में भी हो सकता है ना? नहीं सर, वो तो बिग बैंग था ना, वो तो शुरू में हो चुका है बहुत पहले। ओके पर जो एंड में होगा उसका आप मजा बचा है। और आप बड़ा आर्टिस्ट तो भाई एंड में ही आता है ना, जैसे शाहरुख की फिल्म में है ना, सलमान भाई एंड में आते हैं, सलमान भाई की फिल्म में शाहरुख एंड में, सुपरस्टार एंड में आता है। इतने बड़े बड़े नाम बोल के ना मुझे कन्विंस तो तुमने कर लिया है ना? ठीक है, बात में दम है। थोड़ा देर रुक जाइए बस, खत्म कर दिए ये लोग, वरना इनको भी पता है मेन तो आप ही हो, सबको दम है आपकी है ना, है ना, है ना? तो मैं कल लूँ क्या ये अगला वाला? तो प्लीज गिव अ ह्यूज ऑफ applause फॉर सुनील भाई, ठीक है? फॉर कमिंग इन द एंड। अभी फिर उस तभी देना ना ह्यूज राउंड। सर अभी से करवा लो ना, आपको लगातार देता रहूंगा मैं। प्लीज प्लीज ताली बजाइए सर इनके लिए, नया शो है आपका सर, है ना? लेकिन आता हूँ एंड में परिवार के साथ आता हूँ। अच्छा साहब, वही परिवार, बिल्कुल नया शो, नया नाम, सब कुछ। हाँ लेकिन वही परिवार भैया आपका। तो सबके साथ आऊं? जोर से बोलो। ये माता के भगत भी आए हुए हैं यहाँ पे। नमस्ते। ठीक है, तो फिर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है आता हूँ, साहब, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू जाकिर भाई। कोई पानी वानी दे रहे हैं आपको यहाँ पे? मैं मांग तो रहा हूँ, दे नहीं रहे। कितना देर से आप, कितने सवाल आप पूछे जा रहे हैं, मजा आ रहा है साहब। मैं लगा कहाँ इतने सवाल। चलो फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है साहब, हमारी अगली सुपरहिट सीरीज लव ट्रायंगल डार्क रोमांस और उससे जुड़े बर्बादियों को एक बेहतरीन थ्रिलर के माध्यम में पेश करती है। ट्विस्टेड लव स्टोरीज, सिजलिंग केमिस्ट्रीज और ढेर सारी कलेशों से भरपूर, प्रेजेंटिंग यू द सेकंड सर्चिंग ऑफ महा एंटरटेनमेंट सीजन ऑफ ये काली काली आंखें। प्लीज देखिए साहब, मैं पहले आप ही से पूछूंगा, आकाश लिखा हुआ है, आपने पढ़ देख लिया, मुझे पता है, ठीक है? गजल और आकाश आपसे मैं पूछना चाहूँगा साहब, और ये सवाल यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि क्या है कि उम्र तो बढ़ती जा रही है, यंग और रेलेवेंट लोगों के लिए कंटेंट कैसे बनाते हैं? आप लोगों को कौन सी ट्रिक मिली, हमें भी बताओ, ठीक है? क्या है आइडिया, हाउ डू यू अप्रोच दैट? I don't know, see, the thing is, at the end, at the very core, it's about love. For me, this show, yes, the faces are young adult people, but for me, it's about love. और मेरे राइटर्स, को-राइटर्स और मैं, हम सब उस यंग अडल्ट फेज से गुजरे हैं, हम सब ने वो हार्मोनल अपहीवल्स एक्सपीरियंस किए हैं, so we know what love is like, and that's all we're putting out there. Yes, the faces are these beautiful young adult faces, but at the very core, it's about love. और love तो सबको ही पता है. हाँ, लव तो मोस्टली सबको ही पता है, मिल जाए बड़ी बात है, ठीक है? नहीं, मैंने 2 सीजन बाद बोला कि आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर दिस शिट। बोला कि ये आई एम ट्वाइस द एज ऑफ द कैरेक्टर्स, तो नहीं होगा ये। सो गजल वाज वेरी नाइस एंड देन शी मेड द कैरेक्टर्स ग्रो अप। तो 3rd सीजन में कैरेक्टर्स थोड़े से 3 साल बड़े हो गए, तो वो एक थोड़ा फ़ायदा हुआ है। रिलेटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ दे नॉट हाफ माई एज, बट थोड़ा गैप कम हुआ है। सो कर रहा हूँ कोशिश। प्लीज़ जो भी कोशिश है शेयर करें, हम लोग सब जानना चाह रहे हैं बस। सर आपकी जो है लव पर स्क्वायर फिट थी, फिर मिसमैच है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर एसोसिएशन विद नेटफ्लिक्स एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट। So I think I would not even say experience, it's been a journey, or it's been an incredible journey, because I like doing new things, but you need a partner to back you when you want to do new things. And I think the best way I can describe my relationship with Netflix is we're pushing the boundaries, but they're pushing the boundaries even harder, faster, better. And I think you're seeing that today. ये जो variety आप देख रहे हो, choice देख रहे हो, जो audience की what everyone's caught the fancy of. So I think for me, trying something new and having a platform like this
The other part I think which is fantastic, which I think everyone here has talked about, is that here's a platform where once it lands on it, it connects so strongly with audiences and such a diverse set of audience. तो आप जो mismatch देखेंगे, जो diverse audience to which it appeals to is really the beauty of the show. That's why we're in season 3. Because age group wise, demographic wise, appeal wise, small city, big city, जो charm है, a platform like Netflix makes it connect. Khali content without that right marketing and pushing all behind it, and I think that's the experience, that's the journey. माशाल्लाह, क्या बात है साहब. तो यहाँ पे हमारे जो दो सबसे क्यूट सुपरस्टार्स जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, प्राजक्ता हमारे घर की हैं, ठीक है, हाँ, और रोहित से आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है. तो कैसा ये सबका ख्वाब होता है ना कि किसी टीनेज ड्रामा में आप हो, हाँ ना, जिसके आप फेसेस हो, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, कहीं सड़क पे निकल रहे हैं आपका नाम चिल्ला रहे हैं, तो उस शो का क्या इम्पैक्ट है? हाउ's your project? You've been working on internet anyways also. How Mismatched has changed your life? I mean, it's always going to be very, very special because this was my first time out of YouTube. मेरे universe से बाहर निकल के, and I couldn't have asked for a better first show, better first director, better first writer, producer, also actor. बहुत सब कुछ ही चेंज हो गया है यार, मतलब एवरीथिंग इज वेरी वेरी न्यू, बट एट द सेम टाइम इतने मजे आ रहे हैं करने में कि पता ही नहीं चल रहा कि तीसरे सीजन तक पहुंच गए हैं, बट ओवरऑल वेरी ग्रेटफुल. माशाल्लाह. रोहित यार, क्या हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ज़रा समझाओ हम लोगों को ढंग से. लव है, हेट है, रीबॉन्ड है, सिचुएशनशिप है, कमिटमेंट है, इंगेजमेंट है कुछ नहीं है. जो मुझे आता था मैंने बोल दिया, मैं उतना तो नहीं फॉलो कर पा रहा भाई साहब टर्मिनोलॉजी के साथ. बताइए कहाँ पहुँचा रिलेशन? जाकिर अभी तो देखा है, अभी तो मिले. अच्छा. नहीं, आई थिंक ये सब छोड़ के बहुत सारा कन्फ्यूजन है. There's of course a lot happening in season 3. I think what we've shot so far, whatever we're going to present to the audiences, I think there's a lot happening. There's a lot of evolution of all the characters, not just Rishi and Dimple, but there are some incredible relationships and some incredible depths that all of those relationships go to. और मेरे को बहुत ज़्यादा excitement है उसकी. चलिए साहब, कॉफी पीने के नहीं फेंकने के भी काम आती है, ये हमने इस शो से सीखा. Huge round of applause for Mismatched season 3 guys. Please, I would like to अब आते हैं फिक्शन की दुनिया से सीधे इस दुनिया में. टू बी प्रिसाइज, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के युग में जहां 4 महिलाएं और उनके चिया सीड्स फूड बोल को कड़ी टक्कर देने आ रहा है हमारी राजधानी दिल्ली से कुछ फैबुलस, ग्लैमरस, गॉर्जियस और मार्वलस अर्धांगिनियां. लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स 3 times the glam, 3 times the gossip, 3 times the gold. Give it up for the fabulous lives of Bollywood wives. Yes, ladies and gentlemen, it's Juhu versus Jorbag, Carter Road versus Connaught Place, और सैनिक फार्म वर्सेस. इतनी बड़ी तो जगह ही नहीं है बम्बई में. कहाँ से बताएं? Give it up for more favorite, Fab Squad, नीलम कोठारी, भावना पांडे. ये सब मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है. पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे रिधिमा, आप तो ओजी बॉम्बे हैं. मुंबईची मुलगी, married in Delhi and became a दिल्ली की बिल्ली. अच्छा जी. वरना आपका तो ये मोहल्ला है, मतलब ठीक है. ये तो घर है मेरा. तो वर्सेस में साहब मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली बेहतर है कि बम्बई, क्या है आप लोगों का टेक? There's no competition. Delhi is amazing.
Oh, there's no competition. मुझे लगा मुंबई is amazing there बोलेगी ये. is no Zakir, competition. I'm a fence sitter, so that is why I'm literally sitting in the middle. Literally. मेरी दिल्ली Shalini, की you're friend. sitting in I'm the Bombay. You know that, extreme. na? Well, Bombay is an island. Amchi, You know that. Mumbai. Alibag is the mainland. शालिनी पिक्चर अभी बाकी है, you know that ना? पिक्चर अभी बाकी है, you know that ना? I'm from Calcutta, guys. Oh, कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं. Cross your I seema. am not part of this Seema. competition. There's no competition actually. There's no It's not. competition And the because Delhi is drama winning clearly. No, the drama is equal. We are all real life drama queens. They are अच्छा. lying. There is competition. And if I may say so, Mumbai is the best. Guys, ठीक है, I तो आप think you लोग हमें guys बताइए, need to वड़ा decide पाव- after watching this season. साहब मेरे को सवाल लिख के दिए वो मुझे पूछने पड़ेंगे साहब, ये पहली बार ऐसा हो रहा है. बाकी सब में सवाल पूछो जवाब आ रहा है हाँ ना, ठीक है. यहाँ पे सवाल ही पूछने का टाइम नहीं मिल रहा. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ साहब कि वड़ा पाव या छोले भटूरे? छोले भटूरे, obviously. वड़ा पाव या छोले भटूरे में से अगर चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे? वड़ा पाव. टीम वड़ा पाव कौन वड़ा सा है भाई? पाव और कटिंग चाय. ओ वड़ा पाव और कटिंग चाय और टीम छोले भटूरे भाई. छोले बोलो आवाज. भटूरे. छोले भटूरे. haven't tried, ये देखिए एक मुंबई छोले गैंग में क्रैक भटूरे, आए हैं. for sure. छोले भटूरे, ठीक है. छोले भटूरे. वाह जी वाह जी. Hands down. दिल्ली या मुंबई में से कौन ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है? आप लोग कोई भी जवाब दे सकते हैं. ब्रांड कॉन्शियस है भाई साहब. ये भी कोई गुच्ची पूछने चाहिए. की बात है. Delhi for हाँ? sure. ये भी कोई पूछने की सवाल है, मतलब ये भी कोई सवाल है. Well, हाँ तो बताइए ना जवाब क्या है? दिल्ली में लोग अपने लिए पहनते हैं, बॉम्बे में पैप्स को दिखाने के लिए पहनते हैं. अरे बहुत फर्क है. भाई लोग. दिल्ली में लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं है. अच्छा. अकाउंट्स प्राइवेट हैं. अच्छा. तो लोग अपने लिए पहनते हैं चीजें. मेरे ख्याल से दिल्ली केस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. हैं? तो आप मुझे बताइए कि जितना फैब उतना शहर में ज्यादा ड्रामा क्वीन. are the कौन से शहर में brands. ज्यादा ड्रामा क्वीन है? We are the brands. We don't need brands. She's a We are the brand, she's a brands. brand. अच्छा अच्छा. मैं मुंबई वाइफ से एक Why सवाल Labs? पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से. आप Wildabs बताइए भी साहब ब्रांड कि है, सीमा. एक दिल्ली में ड्रामा है और बॉम्बे में क्वींस है. वो भाई साहब प्लीज गिव अस वन अपलॉज फॉर दिस. Sorry, Delhi. फैबुलस दिल्ली में वर्सेस दिल्ली में एम्प्रेस है. दिल्ली में क्या? यहाँ क्वींस हैं, यहाँ पे एम्प्रेसेस हैं. अच्छा 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 साहब. दिल्ली में वो ड्रामा क्वींस है. और एम्प्रेस. जहाँ नमक की बात रही, बॉम्बे में समंदर है, दिल्ली में नहीं है. अच्छा ओहो. Delhi में well, it's not in Delhi. We are near the let's leave mountains. something We are near the elevated, Aravali Hills. elevated Aravali open Hills. space. मेरे ख्याल से ये डिस्कशन हम बाकी का शो के लिए छोड़ देते. प्लीज कम. यू डोंट अपलॉज फॉर फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स. आइए प्लीज. कैमरा, एक माइक अपनी अपनी साइड कहने को. और फाइनली मुझे आज भी याद है, तकरीबन 3-3.5 साल पहले मुझे नेटफ्लिक्स ने कहा कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं आपके ऊपर, और गुनीत उसको बनाना चाहती हैं. तो मैंने कहा नथिंग लाइक दैट. गुनीत को मैं तकरीबन 12-13 साल से जानता हूँ और उनका काम बहुत पसंद है मुझे, इनका पैशन बहुत पसंद है मुझे. फिर मेरी एक वीडियो कॉल हुई मोजेस सिंह के साथ, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ. तो वो एक छोटी सी वीडियो कॉल में इन्होंने बात करी थी फेथ की. आपको याद है? भोपाल. हाँ, आप अपनी फिल्म शूट कर रहे थे तो उन्होंने फेथ को लेके एक बात करी. तो मैंने कहा ये आदमी जो पहली मुलाकात में विश्वास की बात कर रहा है, इसके ऊपर मैं विश्वास करके अपनी साइड कह सकता हूँ. और फाइनली इन्होंने फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है. आपको यो हनी सिंह कौन है शायद पता हो, लेकिन हृदेश सिंह कौन है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म से पता चलेगा. क्या बात है साहब. Huge round of applause for this. Bhai, I would like you to come on center stage. Hello everyone. Hi. तो साहब वानी आई है. मेरा तो गला सूख कुछ गया ज्यादा ही मैच कर रहे हैं. है ना. देखिए मुझे भी लग ही रहा था.
खैर काम तो करना पड़ेगा। आपका डिजिटल डेब्यू है मंडला मर्डर्स के साथ, तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए और थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। हमने देखा बंदूक वगैरह चला रही हैं आप, ठीक है? मैं लाई नहीं यहाँ पर, मुझे लानी चाहिए थी एक्चुअली बंदूक। ऐसे ही चल रही है, क्यों लाने की जरूरत? गोलियाँ ऐसे ही चल रही हैं। हाँ। सो ये सीरीज़ है एक्चुअली, फिल्म नहीं है, सीरीज़ है और मेरी पहली सीरीज़ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेंचरिंग इनटू डिजिटल अरीना विद बायरफ एंड विद नेटफ्लिक्स एंड इट्स जस्ट अ प्राउड मोमेंट। मैंने इस जॉनर में कभी काम नहीं किया है, मैंने कभी एक्शन, मर्डर, क्राइम, थ्रिलर इस जॉनर को कभी ट्राई नहीं किया, कभी मिला नहीं मौका। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और लिमिटेड ही बता पाऊँगी अभी कैरेक्टर के बारे में। So how do I explain? This is, this is the first time I got the opportunity to kind of get into the psyche of someone, dive deep into someone's psyche, which is navigating through a maze of intrigue and suspense. So this is fully, वो edge of the seat बैठ कर देखना कि अब क्या होगा next. It's that kind of a series. और मुझे ऐसे shows बहुत पसंद है। मैं Netflix इतना binge watch कर चुकी हूँ कि रात को बैठकर binge watch करती हूँ, binge eating करती हूँ और सुबह जिम जाती हूँ. So, just saying. binge eating करती हैं। But I love murder mysteries. I love crime and thriller and all of that. I think मैं Netflix पे जितने shows आए होंगे मैंने अभी तक सब देख लिए। माशाल्लाह साहब, इतना इन्होंने इतना छुपा छुपा के अपने कैरेक्टर के बारे में बताया है इस फिल्म के, समझ कुछ नहीं आया पर क्योंकि वानी कह रही थी तो अच्छा ज़रूर लग रहा था, ठीक है? अभी मैं आपको बताती हूँ बाद में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कम सेंटर स्टेज, आपके साथ तस्वीरें कुछ हो जाएं। यहाँ दीजिए साहब आपका मार्क। साहब स्वागत है आपका हसीन दिलरुबा यूनिवर्स में, ठीक है? एक तो ये फिल्म है, इसमें काफ़ी जो है हम लोग सब रोमांटिक करते रहते हैं, ये रोमांटिक भी है और थोड़ी टेढ़ी रोमांटिक भी है। तो आप बताइए साहब जयप्रत, क्या करना है इस बार, क्या क्या एक्सपेक्ट कर लें हम इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, टेढ़ी है, लेकिन असलियत ये है कि हम सब अंदर से थोड़े से टेढ़े हैं और ये जो टेढ़ापन है ये इसमें पल्प की जान है कि इट एक्सप्लोर्स द फैक्ट कि हम सब थोड़े से ट्विस्टेड है, हमारे अंदर देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ द डेविल इनसाइड अस। सो ये जो पल्प है, ये जो हसीन की दुनिया है, ये उस डेविल को बुलाती है, उस डेविल को बेकन करती है। इस बार और रंगीन है, और बड़ी है, और धमाकेदार है। क्या सर, ऐसा आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपकी फिल्म है, आपके तत्वाधान तले सब चलता है ये सब, ठीक है? तो जब इस तरह की फिल्म का सीक्वल बनता है तो आप लोग क्या उसका ब्रीफिंग रहता है, यार ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे? माइक दे दीजिए। तो पहले तो जाकिर, सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है, एक बढ़िया सी कहानी सुनानी है, उस 2 घंटे का वर्थ देना है। ये भी बात सच है कि जब हसीन दिलरुबा आई, जब बन रही थी, तो उस वक्त मन में सीक्वल नहीं था, उस वक्त ये नहीं था कि एक और, पर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी आपके मन में सीक्वल आता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपके पास एक और कहानी है, वो इसलिए आता है कि शायद पहली कहानी के वो जो किरदार थे वो कहानी से थोड़े बड़े हो गए। जब किरदार कहानी से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप एक सीक्वल मांगती है, तो वही हमारे साथ हुआ हसीन दिलरुबा में, इसलिए आ रही है फिर हसीन दिलरुबा। वाह माशाल्लाह। विक्रांत, आपका माइक पकड़ लीजिए हाथ से, ठीक है? लोग कहते हैं रात गई बात गई, आपका तो हाथ भी गया जी। तो अभी इस बार हम आपसे क्या उम्मीद रखें, कैसा है, क्या कहना चाह रहे हो आप इस बार? सर, जैसे आनंद जी ने और जयप्रत जी ने बताया कि जितना प्यार मिला फिल्म को, ऑनेस्टली वो अनप्रेसिडेंटेड था। और
क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे हम बहुत कुछ बता नहीं सकते फिल्म के बारे में, बट इतना ज़रूर बता सकते हैं देर इज़ लॉट मोर टेंशन, देर इज़ लॉट मोर लव, बेइंतहा प्यार तो है ही ऋषु और रानी का, और देर इज़ अ लॉट मोर मैडनेस और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स बीन फिनोमिनल जितना प्यार इस फिल्म को मिला है, लोगों ने दिया है, एंड उम्मीद है कि दोबारा उतना ही प्यार मिले। सॉरी क्या लास्ट क्या बोला? उम्मीद है कि उतना ही दोबारा प्यार दोबारा मिले। मैं उधर जी। देखने लगा, इतने में लाइन खत्म कर दी। कोई बात नहीं। सनी भाई आप बताइए, ये लव ट्रायंगल में तुमको क्या पड़ी थी आने की? ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है इनका यूनिवर्स, उसके अंदर अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ सॉरी मैं लास्ट टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है उनका यूनिवर्स, उसमें अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ मुझे गुड लुकिंग दोबारा सुनना था इसलिए। बट नहीं यार, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, क्योंकि मुझे भी जैसे आनंद सर ने कहा पहले ही फिल्म देखकर लगा नहीं था कि इसका क्या सीक्वल बनेगा, बट इतनी बढ़िया तरीके से कनिका जी ने लिखी है ये, एंड अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है वो विक्रांत ने सही कहा, वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत ही भोला भाला सा इंसान है जो इनकी कहानी में फंस जाता है। दैट इज द ट्रायंगल ऑफ लव। तापसी, this whole film revolves around you and you, ठीक है ना? तो हम पहली जो प्रीक्वल, उसको अब तो बोलेंगे ना, सीक्वल आ गई है तो, है ना? हाँ ठीक है। तो वन में साहब हमने जो रानी देखी थी और 2 में जो रानी है उसमें कितना फर्क है? एक्चुअली है तो सीक्वल, तो कंटिन्यूएशन होता है एक तरीके से, बट मैं ये कहूँगी कि फिर आई हसीन दिलरुबा की रानी में थोड़ा ज़्यादा प्यार है, थोड़ी ज़्यादा हिम्मत है, और थोड़ा ज़्यादा पागलपन है, क्योंकि जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। क्या बात है, वाह! जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। ये लॉजिक लेके चलेंगे तो हो गया। फिर आप भी हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे अगर भाई आपके लिए। दूरी रखो, हम भले हमारे हाथ भले, हाँ, वरना विक्रांत जैसे। ठीक है कनिका, आप बताइए साहब, है ना? सो मच प्रेशर, इतना जब प्यार मिलता है किसी चीज़ को, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना क्वर्क है उसमें, ठीक है? तो हमको लगा था कि पहले सीजन में ही बहुत ज़्यादा हो गया था, पहली बार में ही बहुत ज़्यादा, तो फिर में क्या लेके आएंगे आप? देखिए, जैसे कि ये सब लोग बता चुके हैं कि फिर में सब कुछ ज़्यादा है, पर मैं आपको अपना रीज़न देती हूँ कि मैंने फिर आई हसीन दिलरुबा क्यों लिखी। मैंने बेसिक सी बात है इसलिए लिखी क्योंकि मुझे खुद से लिखते लिखते ऋषु और रानी से प्यार हो गया था, और जब पिक्चर बन गई और रिलीज़ हो गई मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लगा पिक्चर ख़त्म हो गई पर इन किरदारों से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो इनके प्यार में मैंने पार्ट 2 लिखना शुरू कर दिया। एंड ऑनेस्टली विक्रांत एंड तापसी, आई वांट टू टेल यू, जितना इन्होंने मुझ में ट्रस्ट डाला है, जितना इन्होंने देव गिवन मी द विंग्स टू फ्लाई। हसीन, फिर आई हसीन दिलरुबा बिलोंग्स टू विक्रांत एंड तापसी एज माई ऋषु एंड रानी। एंड नाउ कमिंग टू अनदर रीज़न व्हाई आई वांटेड टू राइट इट वाज पंडित जी। घर में गेस्ट आते थे, बोलते थे पंडित जी की किताबें कहाँ मिलेंगी, तो मैं हस्बैंड यूज्ड टू से तुम मूंछ लगा के इन्हीं से मिल लो क्योंकि यही हैं पंडित जी। तो पंडित जी को अभी बहुत कुछ कहना था, इसीलिए ये दुनिया मेरे से नहीं छूटी, मुझे इस दुनिया में वापस आना था, बहुत कुछ कहना था, मस्ती, अनप्रिडिक्टेबल, जो कि सब ने यहाँ बताया। एंड आई एम सो ग्लैड दैट हमारी हसीन दुनिया को और हसीन बनाने अब आए हैं सनी कौशल, वो मैडनेस का तड़का, वो भोलेपन का तड़का, सब कुछ बहुत कुछ लेके। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स हमारी ओरिजिनल हसीन टीम, भूषण जी यहाँ पर हैं, आनंद जी यहाँ पर हैं, एंड न्यू एंट्रेंट डायरेक्टर जयपत सर इज हियर। सो थैंक यू एवरीवन for being on this ride with me, and yes, फिर आई हसीन दिलरुबा, really looking forward. थैंक यू आनंद सर, भूषण सर, आप लोग इस यूनिवर्स में बिलीव करते हैं और हमको ये कहानी देखने को मिलती है ना? आप इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ पे आप चूज़ करते हैं कि इसका सीजन 2 बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा? लोग हैं या चल जाता है तो बनाना ही पड़ता है? नहीं, देखिए ये फिल्म जब आनंद सर बना रहे थे इनिशियली, जब पार्ट 1 बन रही थी,
तो जब पार्ट 1 मैंने देखी थी तो उसी टाइम मैंने आनंद सर को बोला था इसका तो सीक्वल बनना चाहिए। जैसे आनंद सर ने बोला कि इनिशियली ये डिसाइडेड नहीं था कि हम सीक्वल बनाएंगे, लेकिन जब आप और एंड दिस इज़ अ एक्चुअल सीक्वल। नॉर्मली हम लोग फ्रेंचाइज को आगे लेके जाते हैं, फ्रेंचाइज बनाते हैं और नई कहानी होती है। एक्चुअल सीक्वल्स बहुत कम आती हैं। जिस तरीके से कनिका ने इसको लिखा है और जिस तरीके से ये फिल्म निकल के आई है, आई थिंक दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगी। एंड सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? आप अरे साहब पानी पीने जा रहे अरे नहीं, मैं देख रहा था आप काफी एंजॉय कर रहे हैं शो को। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ और हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों जा रहे हो जाकिर भाई? मेरे सेगमेंट के पैसे नहीं मिले आपको? नहीं भाई, आपको इतने ज्यादा दे दिए कि वो आपसे एक्स्ट्रा करवाना चाह रहे हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी गर्मी है फिर भी आप लोग आए। तो हमारा जो नया शो आ रहा है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे शो के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन सबको आपके रूबरू कराऊं। सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, ऑफ कोर्स लेडीज़ फर्स्ट, हमारे शो के इकलौती जो महिला आर्टिस्ट हैं। प्लीज़ वेलकम कृष्णा अभिषेक। हेलो। जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। थैंक यू। ये बड़ा ये बहुत कम है, मैं कहूँगा इस खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ताली होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कृष्णा, आज जी भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साक्षात मर्द हैं। आपको कैसा लग रहा है आज पहली बार मेंस वेयर में? काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि सीने पर से बोझ हट गया है। यार मैं इतना अच्छा लगता हूँ, ये एक ही बंदे हैं जो मुझे हमेशा लड़की बनाने पे तुले रहते हैं। भाई ऐसी क्या फैंटेसी है आपकी? मतलब आपको लंबी चौड़ी लड़कियां पसंद हैं? देखिए हम इधर आओ, ऐसी बातें नहीं करते। मैं कृष्णा के बारे में, कृष्णा एक सब लोग जानना चाहते हैं कि इस नए शो में नया आप क्या कर रहे हैं? गोविंदा सर का डांस देखने को मिलेगा हमें? वो मैं करता नहीं भाई, वो तो ऐसी परफॉर्मेंस के बीच में ऐसे निकल जाता। एक्चुअली ये ना करने डांस ही आते, कॉमेडी वैसे ही इनकी निकल जाती है। पर वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी टीम में ऐसे धुरंधर आर्टिस्ट हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच कीकू शारदा जी। कीकू जी आइए। कीकू भाई वेलकम। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये कीकू भाई का बड़प्पन है कि यहाँ पे आए हैं, हालांकि बाहर लंच चल रहा है और लंच और डिनर का टाइम हो, फिर आप इनको चाहे ऑस्कर दे दो, ये नहीं आते। लेकिन आज कीकू भाई आए हैं। कीकू भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे देश में कीकू भाई वाहिद ऐसे कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी करने के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। तो इस बार आप क्या ऐसा करेंगे, नया करेंगे अपने दर्शकों के लिए? देखिए ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से जेल ना जाना पड़े, बस इतना कर लेंगे। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कीकू भाई, धन्यवाद आप आए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, किसकी रिहर्सल हुई थी, किसको बुलाना? हाँ, ये जोरदार तालियां हमारे दूसरे आर्टिस्ट राजीव ठाकुर। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये शो में आर्टिस्ट भी हैं। कैसा लग रहा है आपको? तुझे बचपन में दोस्त रख के लिया, तूने आर्टिस्ट मानने बंद कर दिया मेरे को। बचपन में नहीं पता होता ना कैसे लोगों से दोस्ती करनी है, या मतलब वो सब। यही बंदा जो मेरी इज्जत नहीं करता, वरना अभी IC 814 हाँ उसकी अनाउंसमेंट हुई है। हाँ, उन्होंने नाम तक नहीं लिया। नहीं, पर सब लोग चाहते हैं, जब आपके आने से पहले सब मुझे बोल रहे थे कि राजीव कुछ करेंगे अभी, तो आप क्या कुछ करके दिखाएंगे दर्शकों को? मुफ्त नहीं करता। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, 199 रुपए लगेंगे। आपको पता है पहले नेटफ्लिक्स का ये जो पैकेज है पहले 200 रुपए का था, इसके चक्कर में उन्होंने 1 रुपया कम किया है। तो उन्होंने दर्शकों को बोला कि 1 रुपया कम दे देना, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा आपको। नहीं, मजाक कर रहा हूं। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे शो की जो पिलर हैं मेन, जोरदार तालियां, मिस्टर अर्चना पूरन सिंह, मिसेस अर्चना पूरन सिंह। अर्चना मैम, क्या फैन फॉलोइंग है आपकी। पर होता ही ऐसे, 60-70 साल हो भी गए आपको इंडस्ट्री में। आप
बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना मैंने मैम। 1000 रुपए का चेक तेरे बैंक में डलवाया था, उसे बाउंस करवा दूंगी। मैंने बोला था ना सारी अच्छी अच्छी बातें ही बोलना मेरे बारे में यहाँ जी, पर। तो हाँ। मैं अर्चना जी ऐसी लौह पुरुष महिला है मतलब दिखाऊं तुझे? आप इतनी प्यारी हैं, हमारे शो की जान है, हमारा ये लकी चार्म है। और अर्चना जी नहीं होती हमें मजा भी नहीं आता। तो अर्चना जी, लोग जानना चाहते हैं हाँ। कि क्या कर रही हैं आप शो में? जो तू मुझे करने देगा, कुछ करने तो देता नहीं है, बिठा दिया मुझे कुर्सी पर, इससे सारे अच्छी- पंच मुझ पर मारता रहता है। तू कमाता है पंच में, मैं हंसती हूँ, कमाता तू है। तो आप मुफ्त में तैयार होके आई हो? ये तो है नहीं। मुफ्त में नहीं, आज के लिए पेमेंट नहीं मिली है, लेकिन बाकी शोज के लिए मिली है। चुप करना यार, अपना धंधा चल रहा है, ऐसे चलने दे। बस ये आप सोच लीजिए कि हमारी सालों से दोस्ती है। एक और आर्टिस्ट को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा, जिनको मैं पहले भी बड़ी बार बुला चुका हूँ, आते नहीं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील ग्रोवर। अभी मिले तो थे पीछे, छोड़ो कोई नहीं। अब मिलना तो इससे है, मेन मिलना तो इससे। और सुनाओ, आप सुनाओ। कहाँ थे आप? बैक स्टेज? नहीं मतलब कब से बुला रहे हैं आपको, आप आ ही नहीं रहे थे? 6 साल से बुला रहे हैं। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ आपको अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज में। मैं भी आपको बहुत आपका काम एंजॉय करता हूँ। कौन सा लेटेस्ट क्या देखा आपने? वो आप डिलीवरी ऐप पे खाना वाना। अच्छा अच्छा, आपने भी ज़ोमैटो देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपको पता है यही बातों से फिर झगड़े हो जाते हैं। लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। बाहर में खड़ा हुआ था, एक आदमी आया मेरे पास, कहता आपकी लड़ाई का सीजन 2 कब आ रहा है? कौन पूछ रहा था ये बात? ये पापा राजी। पहले मम्मा भी राजी करो अपनी, फिर तो ये हमारी टीम है, आप सब देखते हैं, सालों से देख रहे हैं हम सबको। और ऐसी मैड टीम, ऐसे धुरंधर परफॉर्मर हो। बस हमसे नाम नहीं रखा गया, हमने काफ़ी गुप्त मीटिंग्स भी की, तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं। ये नाम क्या है ये तो बता देना यार। इनको मीटिंग दिखा देते जो हम लोग करी हाँ, थी। अच्छा, एक्चुअली हम दिखाई यहाँ देते पे- हैं। तो हमें क्या बताया था, ये बोल के निकल जाना है कि बैठना है? नहीं पता नहीं, हमें बताएंगे। यहाँ बैठे तो यहीं भी तो दिखाएंगे वो। कुर्सियाँ गिन लो ना। कुर्सा दी गई है तो बैठ जाते हैं। बैठना ही होगा। यहाँ जाके रखे बैठे हैं। मेरे से कहानी सुन लो, हमने फिल्म बना ली है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो ज़रूर। तो जब मैंने इनका पर्सपेक्टिव सुना तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। वो चमकीले की फिल्म थी, और वो चमकीला जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था। क्या बात है? मैंने चमकीले के गाने सुने हैं, ये बात सच है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लिरिसिस्ट हैं, एक गाने वाले हैं, एक संगीत बनाने वाले लेजेंड है हमारे पास। चमकीला खुद लिखता था, खुद म्यूजिक उसकी धुन बनाता था, खुद गाता था, और स्टेज पे खुद प्ले करता था वो, तुम भी। तो वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था वो। वाकई में, वाह। तो उसकी स्टोरी इतने बड़े पर्दे पे कही जानी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके गाने की चॉइस के पे डिस्कशन और हो सकती है, लेकिन चमकीला अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जब इन्होंने मुझे सर ने ऑफ़र की फिल्म, तो जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं सरेंडर कर गया जब इन्होंने चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी चमकीले के बारे में, वो कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था। फिर मुझे लगा कि यार म्यूज़िक कैसे करेंगे आप लोग। हाँ। तो फिर जब ए.आर. रहमान सर हों, मतलब शाह सर हों, मोहित जी हों, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो सारा इन्होंने संभाला। गाने पंजाबी में हैं जो स्टेज पे हैं, जो चमकीले के हैं। बाकी जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग्स दोबारा रिक्रिएट किए गए हैं। बहुत सारे फैंस को ये दुविधा है कि गाने कैसे होंगे। गाने पंजाबी में, चमकीला हिंदी में नहीं गाया जा सकता, उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। फिर मेरे को टेंशन थी कि अमरजोत कौन बनेगी, हाँ। अमरजोत कौन गाएगा, क्योंकि वो चमकीला से भी टफ गाती थी। वाह। तो जब उन्होंने बोला परिणीति जी हैं, तो मैंने इनके गाने सुने हैं, गा लेते हैं, पर अमरजोत को गाना एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोल निभाया। तो जो सर ने कहा जी, इम्तियाज़ सर ने, मैं तो सरेंडर कर गया। ये बोले खब्बे देखो खब्बे देख, सज्जे देखो सज्जे देख, तो वही। सत श्री अकाल जी सर। ठीक है भाई साहब, इसके बाद खब्बे सज्जे के बाद हम सीधे देखेंगे, ठीक है। चमकीले जैसा आर्टिस्ट जिसका जो है इस तरह का टाइम स्टैम्प है उस दौर के म्यूज़िक पे, और उस कहानी को आपने कहा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी सबकी जो है बधाइयाँ आपके साथ हैं और विशेज़ हैं आपके साथ। प्लीज़ आ जाइए स्टेज।
तो आप लोगों का जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो अब आ गई है, ठीक है. Thank you very much for your cooperation. I would like to call upon Monica for the closing note. Please welcome Monica Shergill. Oh my God. I hope all of you are as excited as we are. मतलब इतना मुझे खुद बैकस्टेज देखकर लग रहा था कि इतनी सारी एक्साइटिंग स्टोरीज, इतने सारे एक्साइटिंग क्रिएटर्स. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी that you know, as a service, as Netflix, we can bring so many amazing talented people together. So thank you, and I want to remind everyone, this is just the next few months. Please remember, as Netflix, we have so many amazing stories for you that everything we've shown you is just the next few months. It's going to be a fabulous year. The biggest names and freshest voices in Indian entertainment are bringing their best films, more special series, documentaries, everything. Thank you. And I want to give a special shout out to Nisha Pahuja and her team, the Oscar-nominated documentary To Kill a Tiger, which is also going to be on Netflix. Nisha couldn't make it here because there's voting going on at the Oscars. But I just want to send her all the love and shout out from here. We are all rooting for you, Nisha. And before I sign off, I want to thank again, I don't think I can thank all our creators, all our talent, you know, and of course, members of the press, all of you. Thank you for spending a better part of your day with us. It's so amazing to always share the first look with you all. So thank you. And I also want to thank my amazing team at Netflix India. I mean, nothing is ever complete without you guys. All amazing fans of entertainment, always spending their days, their nights, just making sure how can we find the next great story and how can we support the next amazing creator to bring their story to life. Thank you team.